Good morning, student. Standard 8, textbook page number 211. Try this. Observe the following tables and find which pair of variable here x and y are in inverse proportion. वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है. फर्स्ट कॉलम इज द एक्स, दिस इज वाई, दिस इज x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 मीन्स x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई y3 x4 मल्टीप्लाई y3 मीन्स ऑल ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर सबका सेम है तो दे आर इन प्रपोर्शन. If the answer is different, they are not in proportion. Okay, let's start. First one, x1 means 50, y1 means 5. So x1, y1 means 50, 5 are 250. x2 40, y2 6. So x2, y2 is equal to 46 are 240. x3, y3, x3 30, y3 7. So x3 multiply y3, 37 are 210. x4 20, y4 8. So x4 multiply y4 is equal to 20 multiply 8. Answer is 160. Means see here all the answers are different. They are not equal. So it is x1 y1 not equal to x2 y2 not equal to x3 y3 not equal to x4 y4. So x and y are not in inverse proportion. ये जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम आएगा तो भी इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, अदरवाइज इट विल नॉट इन इन्वर्स प्रोपोर्शन. नाउ सेकेंड नंबर, दिस इज x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 means doing the same again multiplication. Okay, x1 y1 means 100 multiply 60, 6000. x2 y2 230 multiply 30, answer is 6000. x3 y3 तो 300 multiply 20, again answer 6000. 400 multiply 15, answer is 6000. So here all are equal, so they are x and y are in inverse proportion. Okay. Now number 3, ये टेबल पे x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6 तक है और मीन्स सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. यही सेम प्रोसीजर है मेथड आपका. लेट्स स्टार्ट. x1 y1 तो ये फर्स्ट कॉलम आंसर इज 900. x2 y2 अगेन आंसर इज 900. x3 y3 45 2 90, आंसर इज 900. x4 y4 25 3 are 75. So here is answer 750. मीन्स अभी चेंज हो गया. Now x5 y5 30 multiply 20, answer is 600. x6 y6 answer is 35 5 are 175. Means here these three are equal but these three are not equal. So x and y are not in inverse proportion. ये inverse proportion नहीं है. Okay? Let us consider some examples where we use the concept of the inverse proportion. When two quantities x and y are in direct proportion or very directly, they are also written as x inverse y. When two quantities x and y are inverse proportion or very inversely, they are also written as x इनवर्स 1/y. डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो इस तरह से आपको लिखना है और जब इनवर्स प्रपोर्शन है तो इस तरह से लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट पेज. एग्जाम्पल नंबर 7. 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? देखिए तो नंबर ऑफ द पाइप 6 और 6 पाइप्स है तो टाइमिंग कितना लग रहा है 80. अभी पाइप कम कर देंगे तो टाइम क्या होगा, इट शुड बी इंक्रीज. ये देखिए टाइम आपका बढ़ जाएगा. लेसर द नंबर ऑफ द पाइप्स मोर विल बी द टाइम रिक्वायर बाय टू फिल द टैंक. सो इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. और इनवर्स प्रपोर्शन है तो x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2 और 80 multiply 6 is equal to x multiply 5. मीन्स x आप सेपरेट करेंगे तो ये 5 डिवाइड में जाएगा. आंसर इज
5 16 जा, तो 16 6 जा 96. The time taken to fill the tank by the 5 pipe is 96 minutes. 96 मिनट्स को कन्वर्जन किया है. 60 मिनट मीन 1 आवर. 60 मिनट प्लस ऊपर एक 36 मिनट. 96 में से 60 माइनस करो तो यू गेट द आंसर 36. सो 1 आवर 36 मिनट. Example number 8. There are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. How long will this provision last if 25 more students join the group? देखो 100 स्टूडेंट है तो 20 डेज चल रहा था सामान उन लोगों का प्रोविज़न, पर भी स्टूडेंट इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली टाइम डेज इज बिकम अ लेस. सो इट इज़ द इनवर्स प्रपोर्शन. इनवर्स प्रपोर्शन है तो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2. मीन्स यहाँ पे y2 को y ही लिया है तो 100 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड 125. आंसर इज 16 इक्वल टू y. Thus the provision will last for 16 days. If 25 more students join the hostel. अभी स्टूडेंट्स 25 मोर ज्वाइन कर. अभी इसके लिए ऑल्टरनेटिवली एक मेथड और भी है. x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. तो आप x1 अपॉन x2 y2 अपॉन y1 इस तरह से भी ये कर सकते हो. दोनों मेथड है, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा. एग्जाम्पल नंबर 9. If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? 15 वर्कर्स 48 आवर्स. अभी वही काम आपको टाइमिंग कम लेके करना है. मीन्स आपको वर्कर्स इंक्रीज करना पड़ेगा. देखिए, लेट द नंबर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स इज बी वाई. पर ये भी इनवर्स प्रपोर्शन है. किस तरह से वो आपको पता चला कि भी टाइमिंग कम करेंगे तो वर्कर्स आपका बढ़ जाएगा. एक प्रपोर्शन कम हुआ, दूसरा इंक्रीज हुआ. इट इज़ द इनवर्स प्रपोर्शन. इनवर्स प्रपोर्शन है, इसीलिए आप x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2 कर सकते हैं. पर तो 48 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई y. सो आंसर y इज इक्वल टू 24. So to finish the work in 30 hours needed, the 24 workers are required. Okay. Exercise 13.2, question number 1. Which of the following are in inverse proportion? The number of the workers on a job and the time to complete the job. देखिए, number of the workers increase होंगे तो completing work has a less time. Means one proportion increase, another is decrease, so it is the inverse proportion. The time taken for a journey and the distance travel in a uniform speed. देखो यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म रखिए, स्पीड इंक्रीज नहीं करना है. तो टाइम टेकन फॉर द जर्नी वो कैसा होगा? इट इज ऑल्सो नॉट इंक्रीज. दोनों स्टेबल है तो यहाँ पे नॉट इनवर्स प्रपोर्शन. स्पीड आप नहीं बढ़ा रहे, बराबर. और तो जर्नी के लिए जितना टाइम लगना है लगेगा. मीन्स कोई भी एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है. सो इट इज द इनवर्स प्रपोर्शन, नॉट इनवर्स प्रपोर्शन. नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. देखो, जितना एरिया आपके पास ज़्यादा होगा क्रॉप कल्टीवेशन ज़्यादा होगा. एरिया ऑफ द लैंड इट इज़ लेस देन द क्रॉप हार्वेस्टेड इज ऑल्सो लेस. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट इंक्रीज प्रपोर्शन. यहाँ पे दोनों साथ में कम हो रहे हैं, दोनों साथ में इंक्रीज हो रहे हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. टाइम टेकन फॉर द फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. देखिए, स्पीड ऑफ द व्हीकल्स आप इंक्रीज करेंगे तो टाइम आपका कम होगा. स्पीड ऑफ द व्हीकल आप डिक्रीज करेंगे तो टाइमिंग आपका इंक्रीज होगा. मीन्स यहाँ पे वन प्रपोर्शन इंक्रीज, अनदर इज द डिक्रीज. सो इट इज़ द इनवर्स प्रपोर्शन. द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर्सन. ये भी इनवर्स प्रपोर्शन है. तो देखिए कैसे, द पॉपुलेशन जितना ज़्यादा है तो लोगों को ज़मीन कितनी मिलेगी? कम मिलेगी. Population is increased and the land for the per person it is decreased, so it is inverse proportion. तो आप नोटबुक के अंदर ट्राई दिस करेंगे. ये पेज नंबर 211 की ये दोनों बॉक्स है वो नोटबुक में आपको लिखना चाहिए. दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. फिर एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8
Example 9 or exercise 13.2 question number 1 write in a notebook. Over.